اتنا ایمان نہیں بڑھتا جتنا کوئی مضمون لکھتے وقت بڑھتا ہے۔ کوئی ایک بات اور کوئی ایک علم بھی ایسا نہیں جس کا گر حضرت مسیح موعود کی کتب میں درج نہ ہو۔ بس خدا تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء آتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی تعلیم کو پھیلائیں، ان کی تعلیم سے ایک قدم ادھر ادھر نہ ہو۔ ادھر ادھر ہونا کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ سے مقدم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انبیاء کو خدا بھیجتا ہے اور ہمارے خیالات ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ابھی غور سے سنیے گا، پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آ جاتا ہے تو پہلے نبی کا علم بھی اسی کے ذریعے ملتا ہے، یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا، اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے بمنزلہ سوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعے دیکھنے کے۔ یہی درجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو مسیح موعود نے پیش کیا، اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے، اور کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جو مسیح موعود کی روشنی میں دکھائی دے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اسی ذریعے سے نظر آئے گا کہ حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اگر کوئی چاہے کہ آپ سے علیحدہ ہو کر کچھ دیکھ سکے تو اسے کچھ نظر نہ آئے گا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی قرآن بھی دیکھے گا تو وہ اسے یہدی من یشاء والا قرآن نہ ہوگا بلکہ یضل من یشاء والا قرآن ہوگا، جیسا کہ مولویوں کے لیے ہو رہا ہے۔ لیکن جب حضرت مسیح موعود کے بتائے ہوئے معنی اور گرو کے ذریعے دیکھے گا تو قرآن کو بالکل نہیں کتاب پائے گا، جو عقل کو صاف کرنے والی، روحانیت کو تیز کرنے والی اور خدا تعالیٰ کا جلال دکھانے والی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے نبی کے دی ہوئی اینک سے دیکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں دنیا کے علوم حیض کے چیتھڑوں سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر حدیثوں کو اپنے طور پر پڑھیں گے تو وہ مداری کے پٹارے سے زیادہ وقت نہ رکھیں گی۔ معاذ اللہ۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا، حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کی پٹاری کی ہے، جس طرح مداری جو چاہتا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے، اسی طرح ان سے جو چاہے نکال لو۔ فی الوقت یہ صحیح بات ہے اور یہ نبی کا ہی کام ہے کہ بتائے کہ کون سی ایسی حدیث ہے جو دست برد کا نتیجہ ہے اور کون سی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا کلام ہے۔ اسی طرح دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ احادیث علوم کو بڑھانے والی اور روحانیت کا راستہ دکھانے والی ہے، اور اگر اس سے علیحدہ ہو کر دیکھیں گے تو مجموعہ تضاد ہوگا۔ پس مسیح موعود سے جدا ہو کر کوئی علم نہیں ہے۔ لیں جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مرزائیوں سے کہ بھئی تم کون سی قرآن کی بات کر رہے ہو، کون سی حدیث کی بات کر رہے ہو؟ وہ ولی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے، یا وہ جو مسیح موعود کی اینک سے یا اس سوراخ کے ذریعے نظر آئے گی؟ کیونکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو اس سوراخ سے نہیں دیکھے گا یا جو مسیح موعود کے گرو سے نہیں سمجھے گا، اس کے لیے قرآن بھی گمراہ کرنے والا قرآن ہو جائے گا اور انبیاء کو بھی نہیں سمجھ سکے گا۔ تو یہ ان کی چال بازی ہیں، ان کو ایسے آڑے ہاتھوں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ جی 15 جولائی 1924 الفضل، جی میں نے لکھ لیا جی، صفحہ نمبر 8 ہے۔ ٹھیک ہے جناب جی میں اب گوگل پہ اس کو نکالوں گا۔ اس پہ اعتراض کیا ہے؟ آ گئے اعتراض کرنے والے۔ نہیں، اعتراض کرنے والے تو پہلے موجود ہیں، میں نے پوچھا اعتراض کیا ہے۔ اعتراض اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح موعود کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ ہاں تو صحیح بات ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر مسیح موعود کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ حکم و عدل اس کو اسی لیے بنایا گیا ہے نا کہ اسی نے بتانا ہے کہ قرآن کا کیا مطلب ہے، حدیث کا کیا مطلب ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ جی بالکل درست فرمایا انہوں نے۔ ٹھیک سمجھ بات۔ اچھا عامر بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آواز کدھر سے آ رہی ہے بار بار؟ یہ عامر بھائی آپ کر رہے ہیں؟ جی پوچھیں بات، کون پوچھنا چاہتا ہے؟ لائف چینجر کی آ رہی ہے۔ نہیں، یہ تالیاں بجا رہے ہیں، چوہان صاحب کی بات سن کے نا کلیپنگ کر رہے تھے۔
अच्छा अच्छा। तारी चौहान साहब कह रहे इसमें एतराज़ वाली कौन सी बात है? खान साहब क्या कह रहे हैं? चौहान साहब कह रहे हैं जो भारत मैंने पढ़ी है ना मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की, कि कोई नबी नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई हदीस नहीं, हदीसों की वक़्त जो है वो मदारी की पिटारी जैसी है, जो चाहो निकाल लो। वो कह रहे हैं सही बात लिखी हुई है, इसमें कौन सी गलत बात है? नहीं, उन गालियों को छोड़कर जो उन्होंने हदीसों को दी हैं, बाकी जो बात है ना उनकी, उसमें तो वो आज़ाद हैं। वो ये कहें कि भाई कोई कुरान कुरान नहीं, कोई हदीस हदीस नहीं जिसकी हमारा मसीह मौत तस्दीक ना करे, वो कहने में आज़ाद हैं। हम कहते हैं इसको ऑन करें ना, इसके बाद ये ना कहें कि आओ कुरान और हदीस से बात करें, ये ज़्यादती है। आप ये कहें कि कुरान 30 पारों की बजाय 15 पारे है, 10 पारे है, 5 पारे है, हदीस सिर्फ 15 हदीसें दुनिया में है, बाकी कोई हदीस नहीं। जो मर्जी जितना मर्जी आप माने, लेकिन उसको ऑन करें, उस बात को फ्रॉड ना करें दुनिया के साथ। ये कहते हैं आओ हमारे साथ कुरान और हदीस से बात करो, कुरान से बात करें, कुरान की आयत लगाते हैं, आओ दोनों इस पे बात करें। हम यही कहते हैं कि आपका ना कुरान से कोई तल्लुक है ना हदीस से कोई तल्लुक है। आपके लिए कुरान वो है जिसकी तस्दीक आपका मसीह मौत बयान करे, जो तस्दीक वो करे, जो वो मैंने बयान करे, वही कुरान है। जिसकी तस्दीक ना करे वो ना कुरान है ना हदीस। ये तो कहें ना, इसको तो ऑन करे ना, बाकी आप आज़ाद हैं, जो चाहें रखें। लकुम दीन ये आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि मिर्ज़ाई जो है ना, वो चूँकि मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से भागते हैं, इसलिए वो कुरान का कोई अलहदा मतलब करना चाहते हैं जो मिर्ज़ा साहब की तहरीरात से मेल नहीं खाता। तो इसलिए आपकी बात ये दुरुस्त है कि उनको बात करनी चाहिए मिर्ज़ा साहब की तहरीरात से, क्योंकि मिर्ज़ा साहब का ये दावा है कि इस ज़माना में कुरान का सबसे ज़्यादा इल्म मुझे दिया गया है। तो फिर हम उन्हीं से इल्म लेंगे ना, अगर हम उनको मानने वाले हैं। हाँ, मिर्ज़ाई उनका इनकार कर दें तो फिर जहाँ से मर्ज़ी इल्म लें, लेकिन ये मिर्ज़ाइयों की बिल्कुल गलत बात है कि वो ना अपने हक मुअद्दल की मानते ना अपने मुस्लिम मौत की मानते। मुसीबत तो ये मिर्ज़ाइयों की। जी सर, वही वो मैं कह रहा हूँ कि चौहान साहब ये है ना कि उन्होंने अपने कुरान पाक का अपनी तरफ से एक तर्जमा किया हुआ है, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे या गूगल्स पे डाला हुआ है। वो उस तर्जमे को प्रेजेंट करते हैं, वो सारा कुछ निकाल लेते हैं और कहते हैं जी इसका तर्जमा ये है। उसको कहते हैं कि नहीं, ये नहीं है, गूगल से नहीं, कोई ऑथेंटिक किसी तर्जमा करने वाले का बताएं तो उसके ऊपर वो बात नहीं करते, वो भाग जाते हैं फिर उससे। वो कहते हैं नहीं, आप अपने, वो तौबा नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं कि आप अपने कुरान को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं। हाँ जी, चौहान साहब आप फरमा रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि इस दौर में सबसे ज़्यादा इल्म मिर्ज़ा साहब को मिला है कुरान का। तो आप कोई आयत या कोई ऐसी चीज़ पढ़ के सुनाएं जिससे पता चले कि फ़लाँ आयत का जो मिर्ज़ा साहब ने तर्जमा किया है वो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। तो मिसाल भी देना कि मिर्ज़ा साहब ने दावा किया है कि सबसे ज़्यादा मेरा इल्म है कुरान के बारे में, तो कोई हवाला, कोई सबूत दें कि यहाँ से साबित होता है कि उनका इल्म है। नहीं, जैसे उन्होंने 30 कुरानी आयात वफ़ात मसीह के लिए पेश की हैं कुरान से। अच्छा, सुन लीजिए अमर भाई एक मिनट। हाँ जी, वफ़ात मसीह की 30 आयत तो उन्होंने पेश की कि मसीह अलैहिस्सलाम फौत हो गया, ये आप कहना चाहते हैं? जी जी। तो 52 साल तक तो वो मानते रहे। क्या हाँ, ये क्या मतलब? ये कोई इतराज़ है? हाँ, 52 साल तक तो मानते रहे। 52 तो साल तक मैं अपने 52 साल तक मिर्ज़ाई खिलाफत मानता रहा। हाँ, तो इससे इतराज़ है? मिर्ज़ा साहब की तहरीर एक और भी सहाबा सारे बुत परस्ती करते रहे। और सर बात तो सुन लेना। सर बात तो सुने, कोई दलील नहीं है ना ये बनती आपकी। मैं दलील देने लगा हूँ आपको। मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि मुझे खुदा ताला एक लम्हे के लिए भी गलती पे नहीं रखता। वो झूठ लिखा हुआ है मिर्जे ने। एक तो आप ये कि तमीज़ से बात करें, क्योंकि आप हाँ जी, बदतमीज़ी की तरफ आप बहुत जल्दी जाते हैं। मिर्ज़ा साहब की अपनी प्यारी तहरीर में है कि मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि मेरा खुदा मुझे आँख झपकने के लिए भी गलती पे नहीं रखता। अब तो नहीं बदतमीजी हुई?
हाँ जी, तो अब नहीं 52 हुई साल तक बदतमीजी। खुदा ने उनको गलती पे रखा। हाँ, 52 साल से तो पहले मिर्जा उन्होंने साहब का नहीं ये किया था लिखना, दावा। सर मेरी बात तो सुन लें। 52 साल तक मिर्जा साहब के खुदा ने उनको गलती पे रखा, और एक साइड पे मिर्जा साहब का खुदा एक पलक झपकने के लिए भी गलती पे नहीं रखता। तो मिर्जा साहब झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। जी चौहान साहब। वो म्यूट है जी, वो म्यूट है। नहीं हुन खोलना ही नहीं ने, उन्होंने आखना बदतमीजी करना है। चौहान साहब देना जवाब सर, उन्होंने आपसे पूछा। जवाब है ही को नहीं, वो खोले या ना खोले, जवाब नहीं, है ही को इसका जवाब, इस सवाल का जवाब तो बहुत आसान है। वो बिजी हो गए होंगे, मैं उनकी तरफ से दे देता हूँ। मुझे पता है इस सवाल का वो क्या जवाब देते हैं। जी क्या जवाब है, मेरे इल्म में नहीं है, दें जरा आमिर भाई। वो कहते हैं कि ये ठीक है कि मिर्जा साहब 52 साल तक ना सिर्फ हयात मसीह के अकीदे पर रहे, बल्कि हयात मसीह को साबित करते रहे। कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के ईसा अलैहिस्सलाम का हयात और रफ़ा आसमानी वो साबित करते रहे। लेकिन फिर उनको खुदा ताला ने बता दिया कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, आप ईसा की जगह पर मसीह मऊद बनकर आए। ये उनका दावा है कि उनको खुदा ताला ने बताया तो उनको पता चला, पहले वो गलती पर रहे हैं। ये बात है। नहीं वो ठीक है, जिस खुदा ने बताया, या तो खुदा दो है मिर्जा साहब की। मिर्जा साहब की तहरीर है कि मेरा खुदा मुझे पलक झपकने के लिए भी गलती ये पे बात, नहीं ये जो रहने बात देता। इसकी भी दलील है। ये जो आप दूसरी बार कह रहे हैं ना कि मिर्जा हाँ जी, साहब ने इसकी क्या कहा दलील है? कि मुझे लम्हे भर के लिए भी खुदा गलती पर नहीं रहने देता, ये दावे से बाद की उन्होंने बात की। ये तो नहीं कहा, इसको तो उन्होंने खुद कहा कि 12 साल तक मेरे पर वही नाजल होती रही बारिश की तरह, और वो मुझे मसीह मऊद बतलाती रही, मैं इनकार करता रहा। वही आके कहती रही तू मसीह मऊद है, मैं कहता नहीं नहीं मैं नहीं मसीह मऊद है। अच्छा आमिर नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। अच्छा, इसमें ऐसे चौधरी भाई की बात में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 52 साल तक मिर्ज़ा साहब जो थे वो मुसलमानी अकीदे पे कायम रहे। फिर जब उन्होंने अकीदा तब्दील किया तो उन्होंने ये बात कही कि पिछला अकीदा जो था वो शिरकी अकीदा था, मेरा वाला अकीदा ठीक है। तो इस लिहाज से तो मिर्ज़ा साहब खुद शिरक करते रहे। तो क्या इस बारे में तारिक चौहान साहब कहेंगे? हाँ, ये थोड़ा सा वजनी सवाल है। आप जवाब तमीज आपने से किया है। आप तमीज से बात करें, फिर चौहान साहब जवाब देंगे। ये थोड़ा सा ना मुश्किल सवाल है कि जिस अकीदे पर मिर्जा साहब 52 साल तक रहे उसको दुनिया का सबसे बड़ा कुफर और सबसे बड़ा शिरक करार दिया। ये बात थोड़ी सी ना बोझल है। इसका हल निकालने के लिए कोई बड़ी क्रेन चाहिए कि भाई क्या मिर्जा साहब शिरकिया कुफरिया अकीदे पर रहे। इसका जवाब क्या देते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इनके जवाब मैंने रखे हुए हैं, आप जाएंगे ना अभी वो बराड लग जाएगी, वो आजम सैफी मोहल्लम बैठा, उसने मुझे ये जवाब दिया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है कि जब तक अल्लाह ताला ना बताए तब तक ये ना कुफर है ना शिरक है। जब अल्लाह ताला ने बताया कि अब ये मानना कि ईसा जिंदा हैं और आसमान पर हैं और नजूल फरमाएंगे, अब ये कुफर है। आज की तारीख यानी 1891 के बाद ये कुफर और शिरक करार पाया है। सॉरी, वो मेरा गेस्ट बाहर आ गए थे, इस वजह से वो कोई नहीं, मैं ਤੁਹਾਡਾ वकील जनाब चौहान साहब, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ करते हुए जज़ाकुमुल्लाह ताला। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ मैं दे हाँ ਰਿਹਾ जी, ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ चौहान साहब ने इस सवाल का की जवाब देना हाँ, है। ठीक आमिर नज़ीर भाई, इस लिहाज से तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर जो है वो बहतान बांधा गया। मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो पहली बात की वो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नकल कुफर नबाशत, ये तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो पहले कुछ और कहा और अभी कुछ और क्या मिर्जा साहब नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात आप कर रहे। अल्लाह ताला ने नहीं कहा, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने नहीं कहा। मिर्जा साहब अपने बाप दादा के रस्मी अकीदे पर थे, जो माशरे में अकीदा पाया जाता था, मिर्जा साहब उस अकीदे पर थे। वो अल्लाह ताला का बताया वो अकीदा नहीं था। अल्लाह ताला ने बकौल उनके
उनको 1891 में कीदा बताया कि कीदा ये है, वो नहीं है जिस पर आप बाप दादे कीदे पर कहा। तो कुरान नहीं, असल बात यह है कि 1882 से ही मिर्ज़ा साहब पर इल्हामात हो गए थे, क्योंकि ज़्यादातर इल्हामात वो इब्राहीम अहमदिया के वक्त में थे, लेकिन उनको अपने मुकाम का आहिस्ता आहिस्ता पता चला। और मिर्ज़ा साहब ने इसको लिखा भी हुआ है कि जो अम्बिया होते हैं वो तलामीज़ुर रहमान होते हैं, यानी रहमान खुदा के शागिर्द होते हैं, तो उनकी भी रूहानी तरक्की बतदरीज होती है। नहीं नहीं, एक मिनट चौहान साहब, एक मिनट चौहान साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ जी ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਅੱਛਾ। ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ जी ਬਈ ਮੌਲਮ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ कि ये कुफर और शिरक तब तक नहीं बना जब तक मिर्जा साहब को खुदा ने नहीं बताया। जब खुदा ने हाँ मसलन शराब की हुर्मत जब नाजल हुई तो हराम तब हुई ना। जी 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 हाँ, ये दुरुस्त बात है, शराब पीते थे। ठीक है। इसी तरह से बाकी जो दीगर हुर्मतें हैं वो नाजल जब हुई हैं तभी वो चीजें हराम हुई हैं, जब तक उनकी हुर्मत नाजल नहीं हुई। आप ये तो नहीं ना कह सकते माज़अल्लाह के सहाबा अगर ऐलान नबूवत के बाद 10 साल तक शराब नोशी करते रहे हैं तो ये तो नहीं कह सकते कि 10 साल तक वो हराम काम कर। नहीं, बिल्कुल वो गुनाह नहीं था उस वक्त। हाँ बिल्कुल सही गुनाह बात। नहीं था, गुनाह उस वक्त हुआ जब उनकी हुर्मत नाज़िल हुई। अब इस सवाल का जवाब जो खत्म नबूवत का मुजाहिद देगा मैं उसको मानूंगा। आमिर नज़ीर भाई, कुरान पाक में तो शराब का जो तस्करा है वो तो पुराने अंबिया अलैहिस्सलाम से भी जो है चला आ रहा है। मतलब मसलन के मिसाल दी है ना, वो तो मैंने मिसाल दी है, आपने इस मुद्दे को हल करके दिखाना है, मैं आपको मान जाऊंगा उस सर बंदे देखें को। ना, शराब जो थी वो पुराने ज़माने में भी जो थी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम ही करार दी, मतलब हराम ही करार दी हुई, बुरी चीज़ करार दी हुई थी। ठीक है ना, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी, हजरत दाऊद ये आप क्या बात कर रहे हैं? फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अब आप अलैहि क्या बात कर रहे हैं वसल्लम के दौर के मुताबिक जो है वो ये काम हुआ था। फिर जो है वो सहाबा कराम को, क्योंकि सहाबा कराम उस दौर के थे तो वो उनको नहीं पता था। फिर जब शरीयत नाफिज हुई कि सहाबा जी, जब शरीयत नाफिज हुई तब उन पे जो है वो हराम करार दी गई शराब, वरना उससे पहले कई किताबों में जो थी वो नाजायज ही थी। मतलब ये नहीं कि आप जो है वो उसको हलाल कह दें वो जी, तो वो उसकी ये कोई बात बनती नहीं अब कि आप बताएं, एक मिनट रुकें। ऐलान नबूवत हुआ है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब उम्र मुबारक 40 साल, ऐसे ही है ना। 13 साल तक आप मक्का में रहे हैं, मान लीजिए मेरे ज़हन में अब नहीं रहा, फिर अफगानी भाई करेक्शन कर देंगे। मदीना में आकर अगर शराब की हुर्मत नाज़िल हुई है तो 13 साल तक मिसाल के तौर पर सहाबा जो शराब पीते रहे हैं, आपके ख्याल में वो गुनाह में शुमार होगा या नेकी में, हलाल या हराम काम करते रहे? मतलब नाजायज थी। इस पे जो है उस वक्त शरीयत जब तक नाफिज नहीं हुई थी उस वक्त तक कोई हुक्म नहीं लगाता नबी आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक। मगर उससे पहले किताबों में जो थी वो थी तो नाजायज ही ना, क्योंकि कुरान पाक में जिक्र आया है कि शराब जो है वो जब तो तुम पीते हो तो तुम्हें सर का दर्द करती है, और जो जन्नत की शराब है वो जो है वो तुम्हें सर का दर्द नहीं करती। ये तो पहले ज़माने के लोगों के लिए आया है ना, ये आया। भाईजान सवाल ये है, 13 साल तक मक्का में लोग शराब पीते रहे, नमाजें भी पढ़ते रहे। मान लीजिए कोई ईमान तो ले आए थे नबी अलैहिस्सलाम पर, चले नमाज तो बाद में पढ़ दें। 13 साल तक वो शराब पीते रहे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को नबी भी मानते रहे, शहादत भी देते रहे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बावजूद शराब पीते रहे। वो जो शराब पीना था वो हराम अमल किया माअज़ल्लाह या हलाल किया, जायज था कि नाजायज था? बस इतना सवाल है। ठीक है, जायज था, जब हुक्म आ गया तब तो नाजायज होगी। ठीक है, हाँ, ये है वो बात। अब ऐसे ही यही तो दलील दे रहे हैं मरबी आपके सामने रख रहा है कि मिर्जा साहब को जब तक बताया नहीं गया कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं तब तक ये कुफर शिरक नहीं था। 1891 के बाद ये कुफर शिरक बना है। आप बताएं। मगर सर शरीयत के मुताबिक तो शराब
पीने से आमिर नज़ीर साहब खारिज नहीं हो जाता। इतनी जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इस तरीके से तो मिर्ज़ाई मुरब्बी भी नहीं कर सकते, आप उनसे बेहतर कर रहे हैं बल्कि। नहीं, एक मिनट तारिक चौहान साहब, देखें शराब पीने से दायरा इस्लाम से तो खारिज नहीं हो जाता ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा कर ले तो बस ठीक हो गया जी। मगर शिरकिया अकीदा कह देना, ये तो शिरक तो सबसे बड़ा गुनाह है। Lui deve mettere in rampa? Qui adesso mette. Aspetta qua allora. Va bene, va bene. अच्छा क्या कहा आपने भाई? सर मैंने कहा शराब पीने से कोई इस्लाम दायरा इस्लाम से तो खारिज नहीं हो जाता, अब मगर शिरक या अकीदा कह देने तो शिरक तो सबसे बड़ा गुनाह है। आप ये कह दें कि आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता, मैं ऐसा जवाब बताऊंगा कि आप एहसानमंद रहेंगे। चलो जी, आप वासे कर दें, जज़ाकल्लाह। बात यह है भाईजान, नबी अलैहिस्सलाम शरीयत लेकर आए थे। शरीयत के नजूल से पहले जब तक शरीयत की हुर्मत, शरीयत की नाजल करदा हिल्लत और हुर्मत बयान नहीं की गई, तब तक वो गुनाह नहीं है। मिर्जा साहब को शरीयत लेकर आए थे। अगर ये ईसा अलैहिस्सलाम का हयात मानना, रफा आसमानी मानना कुफर था तो वो 1400 साल से कुफर था। अगर ये जायज था तो 1400 साल से जायज था। मिर्जा साहब अगर ये कहते हैं कि 1891 के बाद कुफर बना है, या मरबी कहता है आपको कि ये पहले कुफर नहीं था, मिर्जा साहब 52 साल तक कुफरिया अकीदे पर नहीं रहे। ये कुफरिया शिरकिया तब कहलाया जब मिर्जा साहब ने लोगों को अपना इल्हाम सुनाया 1891। तो इसका जवाब ये है कि भाई साहब ये नई शरीयत है, ये वही शरीयत है पिछली 1400 साल वाली। अगर तो ये 1400 साल वाली शरीयत है और आपने शोशे की भी कमी बेशी नहीं किया, जिस तरह तल्ला जोर मलक जोर लगा के कहता है, अगर तो आपने शोशे की भी कमी बेशी नहीं की तो फिर तो भाई साहब ये पहले ही हराम था। अगर ये कुफर था तो पहले ही कुफर था, या फिर अब भी कुफर नहीं है। अगर ये मेरी अर्ज सुनिए, पहले मुझे अपने भाई से पूछ लेने देना कि के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक जी आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई जी नज़ीर हाँ, भाई। क्योंकि ये एक शरीयत का मसला, हुर्मत और हिल्लत ये तो शरई अहकामात से होती है ना जी, मगर बात वही आ जाती है आमिर भाई, बात वही आ जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कुरान पाक में जो कुछ और फरमाया है और मिर्जा साहब आके जो है वो क्या 52 साल के बाद कुछ और फरमा रहे हैं और कह रहे हैं मतलब वो कहते फिर उसको असल जो सवाल यहाँ ये पैदा हुआ था कि जिस पर 52 साल रहे उसको सबसे बड़ा कुफर करार दिया, शिरक करार दिया। मैंने पूछा मरब्बी से कि 52 साल तक फिर कुफर और शिरक पर रहे, कहता है नहीं ये कुफर शिरक नहीं होता, जिसकी तस्हीह हो जाए वो कुफर शिरक नहीं होता। मिसाल उसने दी यही दी, साहबा शराब पीते थे तो क्या वो कुफर शिरक या वो हराम काम करते थे, बाद में हुर्मत तो नाजल हो गई ना। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो तो शरई अहकामात थे ना, शरीयत नाजल होती रही दर्जा बदर्जा। क्या आपके घर में भी शरीयत नाजल हुई है? मिर्जा साहब का दावा शरई नबी होने का है, या ये वही शरीयत है? अगर ये वही शरीयत थी तो इसकी हुर्मत और हिल्लत, इसके अंदर जो अहकामात की हुर्मत और हिल्लत भी तो पहले से नाजल हुई है। तो मिर्जा साहब या कहें कि 52 साल तक कुफर पर रहे, शिरक पर रहे, या कहें कि अब भी ये कुफर और शिरक नहीं है। इन दोनों में से एक रास्ता चुनना, या कहें कि नई शरीयत के तहत अब ये कुफर शिरक बना, पहले नहीं था। अब बताएं, समझ आई कि नहीं आई? जी जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया हामिद साहब, जज़ाकल्लाह। जी, इसका जवाब ये है कि ये हम नहीं कह रहे कि वो मिर्ज़ा साहब ने कोई नई शरीयत वो लेके आए। मिर्ज़ा साहब की ये कहना था कि ये एक गलत अकीदा था जो लोगों में राइज हो गया था, जिसकी कुरान में कोई इसकी दलील नहीं मिलती, लेकिन ये गलत अकायद थे जो राइज हो गए। ऐसे ही है कि जैसे तौहीद के मुतल्लिक कुरान मजीद की बड़ी वाज़ेह तालीम है, लेकिन देखें आज भी मुसलमान कब्रों को पूज रहे हैं। तो कुरान में तो लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को पूजना जायज़ नहीं है, लेकिन मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह गवाही भी देते हैं, और इसके बावजूद वो कब्रों को पूजते हैं और वो समझते हैं कि ये हम ठीक कर रहे हैं। तो ये एक गलत अकायद राइज हो गए हैं जिनका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन चूँकि मुसलमान उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए आम तौर पे समझा जाता है शायद इस्लाम का ये हिस्सा है कब्रों को पूजना, जिसको नहीं पता। और कुछ लोग जो मुसलमान होने के बावजूद कब्रों को पूजते हैं वो यही समझते हैं कि कब्रों को पूजने से कोई ये शिरक नहीं होता। तो इस तरह के गलत अकायद तो राइज हो सकते हैं ना। तो वो कुरान नया नहीं उतरता, उसके मतालिब और फिर ये कि बिदात शामिल हो जाती हैं।
तो मुजद्दिद का यही काम होता है कि जो गलत अकायद राइज हो गए हैं उनकी वो निशानदेही करे। तो इससे ये नहीं होता कि उसने कोई नई शरीयत लेके आनी है। तारिक चौहान साहब, ये सबूत आपके पास कोई है जिससे जो है आप ये हजरत ईसा की जो है, चलो अगर ये बिदात और अकायद में ही अगर ये आप कह रहे हैं जिस तरह के आप बकौल आपके, तो आप इसका जो है कोई सबूत दे सकते हैं कि हजरत ईसा की वफात हो चुकी है या कुछ, या आप मिर्जा साहब के मुतालिक मतलब इनसे जो उन्होंने जो नहीं, देखें ना, इसके बहुत सारे सबूत हैं कि मिर्ज़ा साहब अकेले नहीं हैं जिन्होंने ये वफ़ात मसीह का अकीदा राय पेश किया। इससे पहले भी कई लोग लिख चुके हैं ये बातें, मुसलमानों भी ऐसे हैं, आज भी मुसलमान उलमा हैं। मेरे सामने मेरी अपनी जो है अकाउंट उसमें लगा हुआ है कि मुसलमान जो आलिम है वो कह रहा है कि जब तवफ़ी का लफ्ज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आता है तो आप उसका मानी वफ़ात लेते हैं, जब हज़रत ईसा के लिए तवफ़ी का माना आता है तो वफ़ात का माना लेने से आपको मौत पड़ जाती है। तो ये मुसलमान उलमा ही है जो ये बात कर रहे हैं। हालांकि वो भी वही आयत पढ़ते हैं, वही कुरान पढ़ते हैं, लेकिन आम तौर पे यही राय है कि जिन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमान के साथ पास मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोग हैं जो इसको सही नहीं मानते, और वो कोई वो अहमदी भी नहीं है, वो मिर्ज़ा साहब को मानने वाले नहीं हैं। नहीं, मगर मिर्जा साहब के मुताबिक तो देखें, ईसाइयों के मुताबिक तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आसमान पर रफा कर गए, ठीक है। मगर मिर्जा साहब के मुताबिक अगर है तो 5 जगह उन्होंने जो है वो अपनी डिफरेंट खबरें बताई हैं, तो उसमें से कौन सी यार ये देखो ना, अब आप एक और बात कर रहे हैं, ये भी हम बात कर रहे हैं, 5 जगह कब्रें नहीं बताई, 5 जगह बताए, लोग ये समझते हैं कि वहाँ पे कब्र है, वही कहता है वहाँ पे कब्र है। ये मिर्ज़ा साहब ने नहीं वो उनको कब्र बताई हुई। बात सुने ना पहले, फिर मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ यही बताया कि जो तहकीकात है उन्होंने पेश की है जीसस इन इंडिया मसीह हिंदुस्तान में, उसमें वो पूरी तहकीक उन्होंने पेश की है किताबों के हवाले देकर, कि उससे साबित होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर मोहल्ला खान यार में है। लेकिन उसके अलावा जो कब्रें हैं वो लोगों ने बनाई हुई हैं। मसलन एक कब्र तो वो है जो बिलाद शाम में जो है, जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि जब सलीब के बाद उनको वहाँ से उठाया गया तो वहाँ पे रखा गया, तो वहाँ पे तो गिरजा भी मौजूद है, तो लोग वहाँ पे इबादत करने भी जाते हैं। तो इस तरह की और भी हैं मुख्तलिफ जगह। तो मिर्ज़ा साहब ने बताया कि लोग ये मानते हैं कि ऐसा है, ये हम बड़ी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ, अस्कानी साहब को भी पता है। तो मिर्ज़ा साहब ने यही बताया कि एक ही कब्र बताई है और वो मोहल्ला खान यार में है, और उन्होंने बताया कि ये तारीख़ी जो हक़ाइक़ हैं जो उन्होंने पेश भी किए हैं। लेकिन असल बात ये है कि कब्र उनकी कहाँ है, ये कोई सिर्फ़ इसकी तारीख़ी हैसियत तो है, लेकिन दीन के लिहाज से, अक़ीदे के लिहाज से कोई हैसियत नहीं कि उनकी कब्र कहाँ है। हाँ, ये चीज़ है कि वो वफ़ात पा चुके हैं कुरान मजीद के मुताबिक, ये है असल बात। कब्र उनकी कहाँ है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कान भाई, कुरान पाक में कहाँ पे लिखा, कहाँ पे है वो मुझे आयत बताएं कि उन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, कहाँ पे है ये, कौन सी आयत है, जरा मुझे बताएंगे। और यार हमारा ये मौजू नहीं है भाई इस वक्त, फिर किसी वक्त बैठेंगे तो हम उस पर भी इनका कर लेंगे। तो आप बता रहे हैं ना अभी, देखिए नहीं, हमारा ये मौजू नहीं, हमारा मौजू ये है, मिर्जा साहब जो है वो इसी अकीदे पे कायम रहे। हाँ, ये हमारा मौजू था कि वो 52 साल एक अकीदे पे कायम रहे, उसके मुतालिक हमने आपको बताया। हज़रत ईसा की वफ़ात के मुतालिक अगर आपने डिस्कशन करनी तो फिर किसी दिन कर लेंगे। इस वक्त तो मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठा ही नहीं हुआ, और ना मैं कोई कुरान शरीफ का हाफिज़ हूँ कि मैं सारी आयतें आपको निकाल के दे दूँ। 30 आयत उन्होंने पेश की हैं, वो सारी की सारी मौजूद हैं, वो आपको मैं सुना दूंगा। अच्छा, मतलब साबित तो करे ना कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बकौल मिर्जा साहब के कश्मीर कैसे चले गए। वो तो कहते हैं कि वो भाग के। यार आप फिर पढ़ लेना, मसीह हिंदुस्तान में पूरी एक किताब लिखी गई है उसके मुतालिक जिसमें तारीख़ी हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, आप पढ़ लें वो। तो कैसे बताएं, कैसे भी उन्होंने बताया, लिखा हुआ है, अब वेबसाइट पे जाएं, सारी किताब डाउनलोड कर लें, पढ़ें। वफात होगी तो मिर्जा साहब कहाँ से जो है वो ईसा मसीह बन गए।
ये भी भाई ये भी हाँ मिर्ज़ा साहब का ये कहना था कि जब वफ़ात हो चुकी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खुदा की कसम मसीह इब्ने मरियम तुम में नाजिल होगा, तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि वो कोई शख्स है जो उम्मत मोहम्मदिया का शख्स है जिसको मसीह का नाम दिया गया है, वो मसीह मसीह ऐसे होगा। तो 1000 शख्स खड़े हुए, ऐसे तो जी तो चलो जी उन हज़ारों को आप मान लें, मिर्ज़ा साहब को छोड़ दें, उन हज़ारों को मान लें। जी चौहान साहब, मिर्जा साहब ने कहा, और मैं भी जब ये जमात का हिस्सा था हमें भी बताया गया, जैसे अभी आप भी बता रहे हैं कि फाइनल जो मिर्जा साहब ने बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कब्र है वो महल्ला खान यार कश्मीर में है, ठीक है ना जी। और मिर्जा साहब का ये भी दावा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, उनकी जगह मैं आया हूं, ठीक है। अब मुझे आप बताएं, मिर्जा साहब ने मसीह हिंदुस्तान में किताब, मसीह हिंदुस्तान वाली किताब भी लिखी, और भी मिर्जा साहब ने कई किताबें लिखी, कब्र भी मिल गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, उनकी वो जगह आए हैं मसील, असल वो है, ये मसील मिसल बन के आए हैं। मिर्जा साहब उस कब्र पे गए हैं, क्यों चौहान साहब? नहीं, उनको कब्र पे जाने की क्या जरूरत थी? नहीं जरूरत थी। उनका बेटा गया है, नहीं पता नहीं मिर्जा गया होगा। मसरूर गया है, वो भी उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई उसकी जियारत करने मेरी जाना बात था। सुन, जंबा गया क्या है? है ये इधर ही? नहीं मैं आप आपसे पूछे, पूछ मैं रहा हूँ, गया हूँ, आप अब्दुल मुझे हमीद बताएं गया है, सारे। रशीद गया है। हाँ हाँ, आगे सुन ले, आगे सुन हाँ ले। अब नबी की कब्र मिल गई है, मिर्जा साहब ने आपको बता दी है, मिर्जा साहब उनकी जगह आए हैं, वहां पे तो आज तक कोई कादियानी गया ही नहीं, और जो मिसल आया है उसकी कब्र पे आपने करोड़ों रुपया लगाया हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आपका बैर है, अदावत है। अगर कब्र मिल गई थी तो अब ये 4 ईंटें मैं, वहां भी लगा ये देनी थी। क्या सवाल है यार, चौधरी साहब को अकल को सवाल हाथ ये मारे, है, की बात एक है, मेरी फजूल बात सुने, सवाल है। क्या इतने बड़े सवाल सुने, आप एक मिनट सर, एक मिनट सर सुने। देखें, किसी बंदे को, किसी आम से बंदे के बारे में पता चले ना कि ये अल्लाह का वली था, तो लोग उस कब्र की चारदीवारी कर देते हैं, कदर करते हैं कि ये किसी पाक या नेक बंदे की कब्र है। दुनिया का कोई बंदा नहीं मानता सिवाय 4 जो आमदी लोग हैं, इनका मिर्जा साहब ने बता दिया कि हमें हजरत ईसा ये भी अलैहिस्सलाम की आपकी बात गलत है। यहाँ मैं ओ स्वीडन में खलोजा रहता हूँ, भरावा, और खलोजा खलोजा एडा भरावा, तेज तेरी गलत गल ना स्पीड। कर, गलत ना कर मेरी कर भरावा। बात सुन ले, बात हाँ, सुन ले या मेरी। आपने झूठ बोला आगे है से बात, कि आगे आप से बात 4 करें। बंदे आदमी करते हैं। यहाँ स्वीडन में मैं रहता हूँ, यहाँ एक स्वीडिश था जिसने ये किताब लिखी थी, जीसस इन इंडिया, उसने तो बाबा उसने खुद ये बात तो किताब सुन लिखी ले, थी, जिससे एक वो बंदा था, स्वीडिश था। ये बाद में करते हैं, बात हाँ, सुने। झूठ आप बोले ना, झूठ ना बोलने कि जी कादियानी, आप सिर्फ आप मानते हैं, और भी लोग मानते हैं। बाबा बात सुन ले, बात सुन ले। आमदियों को कब्र मिल गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, जो साहब किताब नबी है, साहिब पूरी किताब भी दुनिया नहीं थे, वो साहिब अबे किताब यार, नहीं थे, ये इंजील किन पे नाजिल हुई? चौधरी साहब, डील कोई चौधरी साहब, किताब आप नहीं बहस है। को एक मिनट सर, एक चौधरी मिनट। साहब आप बहस को खराब कर रहे हैं, किसी वो उसी बहस पे रहे। वो है ना, दूसरी जगह जा रहे हैं आप, जिस जगह हैं वहीं पे आप रहें। एक और कादियानी मलंग आ गया, एक पहले मलंग था, एक दूसरा मलंग आ गया। यार मलंग तो तुम हो, सबसे बड़े यार मलंग तारिक हो, चौहान साहब, हर चीज बात पे आप इनकारी बन रहे बात हो मुझे, आप। आप मुझे सबसे बात बड़े करने मलंग क्यों तो नहीं तुम हो। देते? आप मुझे बात करने क्यों नहीं देते? भाई नरमी से बात करनी है, लड़ना लुड़ना नहीं है। हाँ जी, मेरा और चौहान साहब तमीज से ये बात करें तो सवाल है। ठीक है, कोई लो दलील जी, बात। मैं तमीज से करता हूँ। आमिर चौहान नज़ीर साहब, सुने। अच्छा एक ये मिनट क्या रुको, है, पब्लिक फजूल मैसेज सवाल है, सुन ये लें। कोई सवाल है कि नहीं, नहीं, उनकी अच्छा, कब्र मिल गई तो फजूल वहां है। जाके हम मेले लगाएं, मिल गई है सारे कब्र तो एक मिनट, पब्लिक मैसेज एक फजूल सुन जो लें, सवाल पब्लिक वसील मैसेज आया सुन लें। है उसकी कब्र पे मेला लगता है कि नहीं? मेला जो असल कब्र पे है लगना कंपनी की लगता ही नहीं है, कोई मेला नहीं लगता कब्र पे। क्यों नहीं लगता? एक जाए मिनट जाके एक सुने जी मिनट चौहान साहब को, चौधरी अहमद साहब, भाई ये एक फजूल मिनट। बात, फजूल ओए बात सवाल एक मिनट रुको ना। जो हो भी नहीं रही एक मिनट बात, यार, एक उसके मिनट, ऊपर दूसरी सुनने तो तरफ दे, लेके जाना। और सुनने तो दे, मेरा चलिए सवाल है फजूल है तो चौधरी ना साहब जवाब एक देना। मिनट, एक मैसेज देना है, सिर्फ मैसेज देना है, वो सुन लें दियो। काशिफ भाई बैठे ने, काशिफ भाई आप मौजूद हैं? जी जी, मैं बिल्कुल बैठा हूँ। काशिफ भाई ये मैंने हवाला लगाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मिर्ज़ा साहब का अपना तर्जुमा है। ठीक है जी, एक सेकंड। ये मिर्ज़ा साहब की किताब का अपना तर्जुमा है, ख़ातमुन नबीयीन वाली जो आयत है उसका तर्जुमा इन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ। देखिए उसमें ख़ातमुन नबीयीन का क्या मतलब लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है सर, मैं ये जो यानी हाईलाइट मोहम्मद, हाँ जी हाँ जी, यानी
मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया वो कुरान की आयत है, ठीक है, और उसका तर्जुमा लिखा है यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है मगर वो रसूल अल्लाह है और ख़त्म करने वाला नबियों का, ख़त्म करने वाला। चिफ साहब नहीं ये मानते ये तर्जुमा? नहीं वो मैं काशिफ भाई को साथ, आपको पता है ना, उन्हें कोच भी तो कर रहे हैं ना, गाइड भी नहीं, ये नए ख़त्म नबूवत के हम बहुत तैयार कर रहे हैं। अच्छा ये काशिफ भाई, मैंने कहा शायद वो अहमदी हैं, शायद उनको दिखा रहे हैं आप। नहीं वो नहीं, वो अच्छा, मतलब ना वो ख़त्म नबूवत कोर्स चल रहा है इनका। हाँ जी, नहीं देखे ना, कोर्स के अगर हवाले आप दिए जा रहे हैं। दयानतदार हैं ना तो इससे अगला सफ़ा भी पढ़ लें, साथ ही ये जो इबारत जहाँ हो रही है ना क्योंकि आगे भी पढ़ लें प्लीज़, ताकि तो उनको पूरी तरह इल्म हो जाए। नहीं हमारा मसला तर्जुमे पे है ना, हमें तर्जुमा बताना नहीं है। देखे ना, अगर आप किसी वो अहमदी वो किसी से तफसील में बात तो करेंगे ना उन्होंने क्या वो क्या आगे भी पढ़ाएगा इनको, आगे भी पढ़ा हुआ है। क्योंकि जो है ना वो पढ़ें ताकि आपको पता चल जाए कि इसका क्या मतलब है, और वरना बात पूरी नहीं ना ना होगी। टेंशन लिया करें आप, ना टेंशन लें, आपके लिए नहीं है ये। और भाई ये मैं खत्म कह रहा हूँ नबूवत की नई आपने बहुत खुद ही बार कहा है हो रही कि मैं उनको एजुकेट कर रहा हूँ, हाँ जी, तो जब आप एजुकेट कर रहे हैं तो उनको पूरी बात तो सुना दें ना। पूरी बात सुना दी हुई है उनको। ये बात की मैं पढ़ रहा हूँ, ये आयत भी साफ दलालत कर रही है कि बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। बस इससे भी बाकमाल वजाहत साबित है कि मसीह इब्ने मरियम रसूलुल्लाह दुनिया में नहीं आ सकता। ठीक है, तो मुझे कहाँ से वो जो है वो मसीह ईसा बन गए, ये भी तो बात है ना, इस बात पे भी तो आए वो। फिर जब वो नहीं आ सकते तो फिर वो भी नहीं आ सकते। तो इन्होंने मिक्सअप जो अकीदा किया हुआ है, पिछला अकीदा शिरकिया था, ईसा अलैहिस्सलाम आ नहीं सकते, मैं ईसा बन गया हूँ, तो वो फिर किस तरह बन गया? वो खुद देखिए ये बात मैंने आपको समझा दी है कि जब साबित हो गया 30 कुरानी आयात से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो रसूलन इला बनी इसराइल थे वफ़ात पा चुके हैं, और फिर जब हम पढ़ते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे हैं कसम खाकर कि मसीह इब्ने मरियम तुम्हें नादिल होगा, तो फिर हम लाजमी उसका यही समझेंगे कि ये ज़रूर होगा ना। मोहम्मदी सिलसिले का कोई शख्स है जिसको मसीह इब्ने मरियम का नाम दिया गया है। नहीं, ऐसा इस तरह की बात नहीं लिखी है, जो पहले आपने बात की वो ऐसी लिखी है, लेकिन ये ना कहें कि जो है वो नहीं, मुझे ये बताएं जब ये साबित हो जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अच्छा वफ़ात जी, पा एक चुके छोटा सा सवाल था, हैं जो वो मैं पहले रसूलन इला बनी कंप्लीट कर इसराइल लूं, थे, दरमियान तो में फिर ये अगर आगे कहा थे जाए कि मसीह आएगा तो जाहिर है यही समझा जाएगा ना कि वफ़ात शुदा तो नहीं आएगा, कोई और शख्स ही आएगा उस नाम पे, सीधी सी हाँ बात जी, है वो ये। मिर्जा साहब सारी उम्र जिंदा मानते रहे हैं, छोड़े इस बात को। अच्छा अब देखें जी चौहान साहब, मैंने ये बात कर रहा था कि जमात अहमदिया को मिर्जा साहब को मानने वाले लोगों को पता चल गया कश्मीर में कब्र है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। उस कब्र पे तो आप लोगों ने एक ताला तक नहीं लगवाया, और जिसको आप मसील मानते हैं कादियान में जाके देखें, 8 फुट ऊंची बिश्ती मकबरे की वो दीवार है, उसके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। मिर्जा साहब की और उसकी फैमिली की इस तरह कब्रें सजाई हुई हैं कि वो जिस तरह कहते हैं 5 स्टार कब्रिस्तान। सवाल ये पता होता है कि दुनिया को तो नहीं पता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कश्मीर में दफन है, ये आमदियों को पता चल गया। आप लोगों ने ना वहां विजिट किया, 2 रुपए की आपने वहां ताला तक नहीं लगाया। इतने बड़े नबी को एक ऐसी गुमनाम कब्र में आप डाल के बैठे हुए हैं, ये नबी की तौहीन नहीं है? नहीं, नबी की कोई तौहीन नहीं होती इससे। दूसरी है कि हमारा ये तो काम ही नहीं है कि मिर्जे की कब्र यार के ऊपर क्या ये यार पॉलिश करना तुम जरूरी है? फजूल नहीं भाई, नहीं, वहाँ पे हमारी उसकी तौहीन नहीं है, वहाँ करोड़ों डॉलर जो आप लोगों और ने कौन से लगाए हैं करोड़ों वहाँ डॉलर, जरूरी है? क्या कोई मकबरा बनाया हुआ वहाँ पे? हाँ, कुछ भी नहीं है, आम कब्र है आपको बस आपको उनकी। वो 8 फुट वो ऊंची दीवारें हैं, सुन लें। तो दीवारें हैं, दीवारें तो कैमरे महफूज लगे करने हुए के हैं, लिए वो तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकबरा है वो भी वहाँ पे बनाया हुआ है महफूज करने के लिए। कादियानी 10-15 मलंग बाहर बैठे हुए हैं, हम्म, और जो जिनकी जगह मिर्जा साहब आए हैं मसील बन के, उनकी कब्र पे तो कभी आपने मुंह नहीं नहीं, दिखाया जाके हाँ कब्र किधर है। हाँ, तो उनकी कब्र हमने सिर्फ बता दी कि वो वफात पा चुके हैं, बस इतना ही बताना था। ये तौहीन नहीं है? नहीं, कोई तौहीन नहीं है।
क्यों? हमने बताना था कि वफात पा ये चुके हैं, बस मिर्जे तार की इतनी कब्र मारी किसी थी जंगल में बना दे जहाँ बकरियां यार। फिरे। चबलें मिर्जे मारी तार जाओ की तुम, कब्र। फिर मैंने इसका जवाब नहीं देना। चबलें यार मारो। तू शर्म नहीं तेनों आती? 70 साल ਦਾ ਤੂੰ वो ਬੁੱਢਾ ਹੈ, खुद ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਵਲਾ ਕਹਿਣ बेशाल, ਡਿਆ तू ਹੈ? बेहया इंसान है, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 2 बेहया। ਦਫਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ 6 ਚਵਲਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। तू बेहया इंसान है, बस रुक यही है। जाओ। सब प्लीज आराम से, कोई एक दूसरे को ना करे। जिसने अगर किसी ने जवाब देना दे, नहीं देना ना दे। अच्छा, ये तारक मजीद साहब हैं, ये स्पेशल गेस्ट हैं। ये कोतरा साहब की ब्राड पर इनसे मुलाकात हुई थी, तो उनसे बात करनी है। अगर इस तरह से लड़ेंगे और तू तकरार होगी तो वो फायदा नहीं है इस तरह की बात करने का। भैया सारा ये इनको तारक मजीद साहब आपके ऊपर क्यों नहीं चढ़ा जा रहा है? फिर सनी भाई आप मौजूद हैं? जी सलाम अलैकुम, बिल्कुल मौजूद है। जी भाई ਸਲਾਮੁਅਲੈकुम। ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਰਾ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ 99 ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ 99 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ। ये पता है सब कोई अल फजल अखबार में छपे हुए हैं। दोस्त ने भेजे, बड़ा कमाल कर दिया। दोस्त ने कमाल की लत भन दी जनाब। कौन है ਤੁਹਾਡਾ दोस्त? हमेशा ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। हैं ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਾਲੀ ਹੈ? अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। यार कॉल तो कौन पे लांदा बार बार? मैं 2 बारी आया ते पता नहीं, मैंने नहीं पता कौन। मैं इन्हें मना करो तू काम खराब करनगे। ਅੱਛਾ हाँ जी होगी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ उमर भाई की करनी और कोई गल? हेलो उनके नहीं बोल रहे। अच्छा, भी पता नहीं सिग्नल की प्रॉब्लम है, बंदा ऊपर चढ़ नहीं रहा। कोई फ्लैश करते ना कर छड़ी दी है ब्राड जी, वो लाइट ज्यादा हो गए तो फिर वो हैंग नहीं होंदी, ग्लिच होने लगी है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਸਕਰੀਨ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਡ ਡਿੱਗ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ था कि ब्राड ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਯਾਰ ਸਾਰੇ। ਵੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ? अच्छा यार जिस बंदे दे कोल गिफ्टिंग है वो गिफ्टिंग कर दे। शक ना करे, करना ही काफी है कि ब्राड नहीं आमिर भाई ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਛੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ, वो बड़ा जिहा करो जी, छोटा क्यों करते हो? बड़ा जिहा करके करो सवाल। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦ ਖਲਕ ਅਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਗਤ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੁਗਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੁਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦ ਖਲਕ ਮੈਨ ਕਬਲੇ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। वो पता तू की करना पई है? ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦੇ ਹਸਾਨ, इसको ऊपर चढ़ा दो। ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। तारक मजीद साहब पहुंच आए हो?
ਜੀ ਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ। ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਮਜੀਦ ਚੜ ਜਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਥੋੜਾ ਘਰ ਕੰਮ ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਚूंकि ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ बड़ी बाकायदगी ना। जी प्लीज, थैंक यू सर। मैं आप लोगों से थोड़ी देर के लिए इजाजत चाहूंगा, मैं जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह जुमे के बाद आप लोगों से मैं ज्वाइन करता हूँ। फिर असकानी भाई आपने कोई बात करनी है? नहीं, मैंने बात कुछ नहीं करनी है, सिर्फ ये बताना था। अस्सलाम वालेकुम। ये साथी ने जो कद के बारे में पूछा कि कद का क्या मतलब है, तो कद ये फ़ेल माज़ी के लिए, जिससे युफीद ताकीद, ताकीद के लिए। मिसाल के तौर पर कद हज़रा साहिबी, ताकीद पर दलालत करता है कि मेरे जो दोस्त थे वो आए थे। माज़ी की बात की जा रही है, और भी बातें हैं। दूसरी बात मुझे ये बताना था कि वो हमारे भाई हैं, कुड़ू 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 कुड़ू, उनको ऊपर ले लो, उनसे थोड़ी सी बात करनी थी। अच्छा, मैं अभी लेता हूँ। मैंने एक दरख्वास्त करनी थी जाहिद साहब आपसे। मैं आमिर दजीसा से प्राइवेट बात कर रहा था। मेरा टेलीफोन नंबर अगर आप लिख सकें तो लिख लें, अगर आपसे रब्ता हो जाए बाद में तो आप मुझे नंबर मैं भेज दूंगा उनको, मैं नंबर प्लीज प्लीज प्लीज, मेहरबानी, नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, कुड़ू 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 कुड़ू, उनको जरा ले लें। वो किधर है भाई? मलक इमरान, ऊपर आ जा। हाँ, नाराज हो जाएंगे, मुझे ये अंदेशा है, फिर मेरे ब्रोड पे आके शोर शराबा करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। सलाम भाई, खैरियत है? अल्लाह का करम पीर साहब, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब खुश है? अल्लाह का करम, काम पर हूँ। देखा मैंने ऊपर आपको बुला लिया ना, खुश हो गए ना? बहुत शुक्रिया पीर साहब। अब बैठे, अब थोड़ी सी और अगर मौका दे, मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ। आप बात करें, मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए बीच में बस गालम गलोचना किसी भी करनी। जी, बात यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अहमदी जमात का ये ख्याल है कि उन पर कोई शरीयत नहीं उतरी, ये उनका ख्याल है। और उनका ये ख्याल है कि वो मुत्तबे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का, जो कि ये बात गलत है, बात दुरुस्त नहीं है। बल्कि अल्लाह पाक ने तौरात का भी इल्म दिया हज़रत ईसा को, इंजील हज़रत ईसा पे उतरी उनका भी इल्म दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि तस्दीक उन्होंने की जो मूसा पर उतरी है, वो कर रहा है। वो तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी पिछले जो शराए हैं उनकी तस्दीक की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुत्तबे थे नबी अलैहिस्सलाम उनकी शरीयत का। जब आप, हाँ इतना भी है कि कुछ चीज़ें जो बाद में हज़रत मूसा के मानने वालों ने अपने आप पर हराम कर दी थी, कुछ हलाल कर दी थी, उन अहकाम में रद्द-बदल किया, और बाकी जो अहकाम थे उनमें कोई रद्द-बदल नहीं की और उनकी तस्दीक की। जब आप पढ़ेंगे कुरान मजीद फरमाया वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील। तौरात किस पे नाजिल हुई? हज़रत मूसा पे। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम व रसूलन इला बनी इसराइल। अब ये तमाम चीज़ें, वयुअल्लिमुहुल किताब, किताब का भी, अब उसमें मैं नहीं जाऊँगा, हिकमत का भी उसमें भी मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, वह तौरात, तौरात का इल्म भी दिया, और इंजील का भी। इंजील एक अलग किताब है, तौरात एक अलग किताब है। इंजील नाजिल हुआ हज़रत ईसा पे, रसूलन इला बनी इसराइल, बनी इसराइल के लिए रसूल थे। इन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम इला आखिर आया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरियम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदै मिन अत-तौरा। हज़रत ईसा उनके बाद जब आए
तो उन्होंने तस्दीक की जो मौजूद था तौरात। आगे व आतैनाहुल इंजील, हमने हजरत ईसा को इंजील दिया, फी हुदन व नूर, उसमें हिदायत भी थी, नूर भी था, वो मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिन अत-तौरात, तौरात मौजूद था उसकी भी तस्दीक करता है, लेकिन दी गई कौन सी किताब? इंजील। व आतैनाहुल इंजीला फीही हुदन व नूर। आगे व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिन अत-तौरात व हुदन व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, सूरत अल-माइदा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दे दिया गया। ये कहना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कोई शरीयत नहीं उतरी, वो मुत्तबे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के, 100% गलत बात है। एक नहीं 100%, कोई ऐसी दलील नहीं। ये बात आप सुनते हैं अहमदियों से, इसकी कोई दलील नहीं। जी बहुत शुक्रिया। कुड़ू 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 बात कीजिए। जी अहमद भाई मुझे इजाज़त है 2 मिनट। आवाज़ आ रही मेरी पीर साहब? जी आ रही है, तुझे करो कल। अच्छा बात ये है बिलाल साहब, पीर साहब को इजाज़त लो। मुझे अब आवाज़ नहीं आ रही थी बिलाल साहब की। बिलाल साहब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बात यह पीर साहब के ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पहले भी बात हुई थी, और कुरान में ही आयत है उनके बारे में कि वो कहते हैं मैं तस्दीक कर रहा हूँ और बाज़ अहकाम, बाज़ चीज़ें जो तुम पर हराम की गई थी इनको हलाल करने आया हूँ। उन्होंने चेंजिंग की है। कोई उम्मती नबी मुझे दिखा दें कुरान में से, हदीस में से, इसके जिम्मेदारी ये लगाई हो कि वो हराम को चेंज कर सकता है, हराम को हलाल कर सकता है। ऐसा कोई उम्मती नबी नहीं है। ये सिर्फ शरई नबी को ही अल्लाह ताला ये चीज़ देता है। एक तो ये बात है। दूसरी जो तारक चौहान साहब बात कर रहे थे, ये पहले डिसाइड कर ले कि इन्होंने मिर्ज़ा साहब की कौन सी स्टेटमेंट को मारना है। अभी इन्होंने बुखारी की एक हदीस का हवाला दिया कि अल्लाह के नबी ने कहा कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कि उस तुम्हारा क्या, तुमने ईसा बिन इब्ने मरियम उतरेगा, सलीब को तोड़ देगा, खंजीर को कत्ल कर डालेगा और जजिया मौकूफ कर देगा। अहमद भाई आवाज़ थोड़ी सी आप म्यूट कर लें पहले। अच्छा अब हमामतुल बुशरा का एक हवाला था, वो पहले भी डिस्कस हो चुका है एक जगह पे। हमामतुल बुशरा अरबी की जो इबारत है, अहमद भाई आपकी ये म्यूट कर दें प्लीज़ इनको, ये आवाज़ आ रही है, शोर आ रहा है। अहमद भाई सुन रहे हैं तो म्यूट कर ली काइंडली, शोर आ रहा है आपकी तरफ से। अच्छा हमामतुल बुशरा जो अरबी का जो अरबी इबारत है उसका सफ़ा नंबर 191, उसका हाशिया, और जो उसका उर्दू तर्जमा है उसका सफ़ा नंबर 49, वहाँ पे मिर्ज़ा साहब खुद एक उसूल बयान कर रहे हैं। यार इनू थल्ले ला दियो है, कौन बंदा है वे? अहमद आवाज़ नहीं आ रही तेनू? भाईजान ये आईडी है, आईडी की मॉनिटर मेरी है, वो जरा बंद हो गया मोबाइल। ये है मलिक बाई, ये अच्छा। है मलिक बाई। मैं नहीं है जनाब जाहिद अस्कानी साहब की, पहले वेख तो लो। मैं अहमद नू कह रहे हैं भाईजान आप थोड़ा सा कमजोर थे, मैंने सोचा आपके सर पे डाल दूं, वो थोड़ा मजबूत है, दोस्त है ना। हाँ जी ये रेंज ना करो, है एडे भी कमजोर नहीं बैठे दे इत्थे। जहाँ कमजोरी हो वहीं उस पे डाल दो। नहीं नहीं ये गलत होंदी है, कुरान हदीस की गल पे कर दो, किसी मुसलमान ते एवं गलत शैवां नहीं पाई जांदी। अच्छा उत्थे मिर्ज़ा साहब एक उसूल बयान कर रहे ने कि कसम जो है ना, कसम ये बात जाहिर करती है कि जब ये अल्फाज कोई कसम के साथ कहे जाएंगे ना, उसको हम उसके ज़ाहरी मानों में लेंगे, उसकी ना कोई तावील करेंगे, ना उससे कोई इस्तिस्ना लेंगे, उसको उसके ज़ाहरी अल्फाज के साथ लेंगे। अब ये जो बुखारी की हदीस है, इसमें अल्लाह के नबी ने अल्लाह की कसम खा के बात की है।
اب ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کریں گے. جو مرزا اپنا طارق صاحب کہہ رہے تھے اس سے پھر ہم یہ سمجھے گے، اس سے ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے طارق صاحب، کیونکہ آپ کے جو نبی ہیں نا سو کالڈ، وہ کہہ چکے ہیں کہ اب اس کے ظاہری الفاظ کے ساتھ ہی اس کو لیا جائے گا. اب ظاہری الفاظ کے ساتھ اب لے لیں تو ابن مریم کون سے ہیں جن کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہری الفاظ کے ساتھ لینا اب آپ نے. تو قرآن کہتا ہے کہ ابن مریم جو ہیں وہ وہی ہیں جو بنی اسرائیل کے اوپر رسول بن کے اترے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے دعویٰ کی بنیاد، یہ بہت دفعہ بات ریپیٹ ہو چکی ہے اور مجھے کوئی بندہ اس بات کا جواب نہیں دیتا. مرزا صاحب نے کہا کہ میرے دعویٰ کی بنیاد جو ہے وہ احادیث نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ بات کرتا ہے نا کہ آپ کے دعویٰ کی بنیاد فلانی ہے، حدیث ہے فلانی، اس کو انہوں نے احمق کہا ہے، احمق، پاگل، خبتی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میرے دعویٰ کی بنیاد قرآن ہے. اب مجھے قرآن میں سے نکال کے دکھانا ہے کسی قادیانی نے کہ جی جو مرزا صاحب ہیں وہ نبی ہیں اور وہ امتی نبی بن کے اس امت میں آئیں گے، یا جو بھی آپ کے دعوے ہیں اس کی تصدیق میں پھر آپ لے کے آئیں حدیث. اگر آپ انہیں لے کے آنی ہے تو پہلے مجھے قرآن میں سے دکھائیں اور اس قسم والی بات کا جواب دیں. جزاک اللہ. جی پیر صاحب میری بات ہوگی. بہت شکریہ بلال بھائی. طارق جی یہاں نہیں ہیں، شاید چلے گئے ہیں. آپ نے بات کی، بہت اچھی بات ہے، اور آپ نے جس بات کی طرف شروع میں اشارہ کیا بالکل قرآن مجید میں وہ موجود ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. بعض چیزیں جو انہوں نے حرام کر دی تھیں ان چیزوں کو بدل ڈالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ انہوں نے خود سے کیے ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہیں. ہاں، تصدیق تو ضرور انہوں نے کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ شریعت اتری، اور یہ تمام انبیاء کرتے ہیں. ہمارے نبی نے بھی تصدیق کی. تصدیق کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ صاحب شریعت نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. جی بھائی بہت شکریہ. کہاں چلے گئے تھے؟ کوئی ساتھی تھے کچھ بولنا چاہتے تھے. جی بولیں جس نے بھی بولنا ہے. ہاں بولنے کہاں دیتے ہیں ہم جیسے کمزوروں کو. میں اصل میں کیا ہے، کافی ٹائم سے انتظار کر رہا تھا کہ مجھے موقع ملے بولنے کا، تو اب موقع ملا ہے، تھوڑا سا بول رہا ہوں. وہ اس کے بارے میں بتائیں نا، وہ جو آپ کے جانے سے پہلے سوال پوچھا تھا میں نے کون سا؟ کہ یہاں پر ایک بھائی آئے تھے، وہ حضرت ہارون کو بھی رسول کہہ رہے تھے، جبکہ وہ کہتے کہ بتائیں کہ کیا حضرت ہارون بھی رسول ہیں، اور حضرت اسماعیل کے بارے میں. تو حضرت اسماعیل کے بارے میں تو سورہ مریم میں آیا نا رسول النبیہ والا جو ہے، وہ تو میں نے ان کو بتا دیا. پھر میں نے کہا یار حضرت ہارون کے ساتھ رسول کا لفظ دکھا دو، کیونکہ میرے مطالعے کے مطابق حضرت ہارون رسول نہیں تھے، نبی تھے. تو پھر انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر تھی 48 یا 47، جس میں وہ اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ اور ہارون کو اکٹھے کہ جاؤ اس کے پاس. تو وہاں پر رسولہ کا لفظ آیا ہے کہ تم دونوں ان کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. تو اس آیت سے وہ استدلال لے رہے تھے کہ حضرت ہارون بھی رسول ہے. تو اس بارے میں نے انہیں بتایا تھا کہ وہ اس معنوں میں وہاں پر رسول کا لفظ نہیں آیا. تھوڑا اس پہ وضاحت آپ بھی کر دیجئے. نہیں، وہ جو بات ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے. جب گفتگو ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ رسول ہیں، اخترتک لنفسی، تو اس وقت فرعون کے پاس آپ جائیں تو اس وقت کہا گیا، دعا کی، قال رب اشرح لی صدری. یہ ایک دعا ہے. اب اتنا بڑا جو ہے آپ سمجھ لیجیے گا کہ ذمہ داری میرے سر پہ ہے، تو اشرح لی صدری، میرے دل کو کھول دے، یعنی مجھے انشراح ہو گفتگو کے درمیان. ویسر لی امری، اب یہ جو اتنا بڑا کار عظیم میرے کندھوں پر ہے،
تو اس میں آسانی فرما. وحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے زبان میں جو ہے وہ روانی ہو، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو سمجھیں. اب کتنے دعائیں کر رہے ہیں؟ 1 2 3 4 ہو گئے. آگے دعا کیا ہے؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور ایک میرا وزیر، یعنی اس کام میں، اس بڑی ذمہ داری میں میرا ایک ساتھی بھی مجھے چاہیے، لیکن میرے اہل میں سے ہو. آگے فرما ہارون اخی، اور وہ میرا بھائی ہارون ہو. اب یہ ہے وہ دعا کی جا رہی، اشتد بھی ازری واشرکہ فی امری، یہ ہے جو